السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاس اور میں ہوں محروف خالد۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کوٹری میں دوران ڈکیتی پولیس اہلکار ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق۔ بتایا جاتا ہے کہ کوٹری خدا کی بستی پولیس چیک پوسٹ پر تعینات 45 سالہ غلام قادر ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد موٹر سائیکل پر اپنے گھر جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ اس دوران پولیس کانسٹیبل غلام قادر نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس کے باعث غلام قادر موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حجرہ شاہ مقیم میں شادی کی خوشیاں سوگ میں تبدیل۔ مہندی کی تقریب میں فائرنگ سے 15 سالہ لڑکا جاں بحق، ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ نواحی گاؤں دول چوہڑ میں شادی کی تقریب جاری تھی کہ اس دوران منچلوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران ملزم ممتاز عرف تاجو کے پسٹل کا فائر لگنے سے 15 سالہ نوجوان شاہ محمد موقع پر دم توڑ گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ خیرپور کے علاقے کوٹ اعظم میں خاوند نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا۔ واقعے کے مطابق شکیلہ نے ملزم محمد تسلیم ستار سے دوسری شادی کی تھی۔ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ چند روز قبل بھی گھریلو جھگڑے پر شکیلہ روٹ کر اپنے بھائی کے گھر میں آ گئی، جسے منانے کے لیے خاوند اپنے سالے کے گھر آیا، جہاں دونوں کے درمیان دوبارہ جھگڑا ہو گیا اور ملزم نے طیش میں آ کر بیوی پر فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس نے چوریا میں گھریلو ناچاکی پر بھائی نے فائرنگ کر کے بہن کو زخمی کر دیا۔ واقعہ تھانہ سٹی کی حدود کوٹ عمر وٹو میں پیش آیا، جہاں 17 سالہ آسمہ بی بی اپنے سسرالیوں کے گھر اکیلی رہتی تھی۔ 23 سالہ ارسلان نے فائرنگ کر کے اسے زخمی کر دیا، جسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اٹک کے علاقے کاوا گاؤں میں درخت کاٹنے پر دو گروپوں میں تصادم، کلہاڑیوں کے وار سے باپ اور دو بیٹے شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں میں 55 سالہ اصغر، 24 سالہ وقار اور 20 سالہ آکاش شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد سیشن عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کی عمران خان کے خلاف فوجداری کی کارروائی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سیشن عدالت نے عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کی شکایات پر توشہ خانہ کیس کی سماعت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پتوکی میں بینک مینیجر کے گھر ڈکیتی کی واردات، 5 ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کرتے رہے۔ ڈاکو مقامی ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی راؤ احسن کے گھر کے 1,21,000 روپے نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ کوہنور نیوز نے واقعے کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہے، جس میں ڈاکو کی گاڑی کو آتے اور جاتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پتوکی میں بینک مینیجر کے گھر ڈکیتی کی واردات، 5 ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کرتے رہے۔ ڈاکو مقامی ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی راؤ احسن کے گھر سے 1,21,000 روپے نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ کوہنور نیوز نے واقعے کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہے، جس میں ڈاکوؤں کی گاڑی کو آتے اور جاتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈی ایس پی سرکل غازی محمد یاسین جنجوعہ کا مختلف چرچز کا دورہ، سیکیورٹی پر مامور پولیس افسران اور جوانوں کے ڈیوٹی سے متعلق ضروری ہدایات دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے تفصیل رپورٹر محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں۔ PO ہری پور عمران شاہد کی خصوصی ہدایت پر DSP سرکل غازی محمد یاسین جنجوعہ نے سرکل غازی میں مختلف چرچ کا دورہ، جملہ چرچ کے سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ، چرچ سیکورٹی ڈیوٹی پر تعینات افسر اور جوانوں کو ڈیوٹی سے متعلق ضروری ہدایات دیے۔ اس موقع پر چرچ انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کی، سیکورٹی انتظامات سے متعلق دریافت کی، جس پر انتظامیہ نے ہری پور پولیس کی جانب سے سیکورٹی انتظامات سے متعلق اطمینان کا اظہار کیا اور ہری پور پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ
विहाड़ी में गिरां फरोशी अरूज पर दुकानदार सादा लूट शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। रेट लिस्ट आवेजा न करके शहरियों से मनमाने रेट वसूल किए जाने लगे हैं। पीपल्स कॉलोनी हबीब चौक में बेकरी मालिक की गरीब आवाम को चूना लगाने की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह दुकान मालिक शहरियों से जायद कीमतें वसूल करता है और इस दौरान गाहक दुकानदार से ज्यादा रेट लेने पर एहतजाज करते हैं तो वो उल्टा उनसे बहस करना शुरू कर देता है। अहले इलाका ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उकाड़ा में डेकी की झूठी वारदात पर शाहपुर पुलिस का एक्शन। पुलिस के मुताबिक शहरी रियाज ने 15 पर अपने साथी होने वाली डकैती के कॉल चलाई। मौका पर हालात दरियाफ्त किए तो डकैती के कोई शवाहिद ना मिले, जिस पर पुलिस ने झूठी कॉल चलाने पर मुकदमा दर्ज करके शहरी को गिरफ्तार कर लिया। कसूर में बासर शख्स इशफाक कंबू के भतीजे की शादी रक्स की महफिल में तब्दील। मेहंदी की रस्म में लड़कियां फहश डांस करती रहीं, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। महफिल में बच्चे बूढ़े और जवान शामिल रहे और खूब नोट निछावर करते रहे। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, लेकिन अमीर जो मर्जी काम करते रहे उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सादकाबाद में लड़की के रिश्तेदारों ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जमीन तंग कर दी। दर्जनों अफराद ने नौजवान को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। मजीद जानते हैं अली मेरानी की इस रिपोर्ट में। सवात में अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, कातिल हमसाया निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चंद रोज कबल पुलिस स्टेशन मंगलोर में एक अंधा कत्ल केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक नौजवान लड़के ज़ैनुर रहमान को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। मकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने मुलजिम के पास अपने 22 लाख रुपए बतौर अमानत रखे थे। जब उसने वापसी का तकाजा किया तो मुलजिम ने उसे कत्ल कर दिया। मुलजिम से 13.5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। सरगोदा रीजन में सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए महकमा सुई नॉर्दर्न गैस मुतहरिक। सार्फिन की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही सरगोदा के शहरियों को गैस न मिलने की शिकायत बढ़ जाती थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए महकमा सुई नादरन गैस की जानिब से खाने के मुकर्ररा औकात में सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सार्फिन की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जिसका मकसद आवाम को सहूलत और फौरी शिकायत को हल करना है। इस हवाले से रीजनल मैनेजर सुई नादरन गैस सरगोदा साजिद रजा सैयद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सार्फिन को खाने के औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है, जिसके लिए रीजन भर में सुई गैस अमला मुतहरक है। सरगोदा शहर में सुई गैस का प्रेशर बढ़ाने के लिए फरूक कॉलोनी, रहमानपुरा, इस्लामपुरा, जफर कॉलोनी, सेटलर टाउन, रशीद कॉलोनी और दीगर मुतअद्दिद कॉलोनियों में पुरानी पाइपलाइंस खत्म करके नई पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं, क्योंकि पुरानी पाइपलाइंस की लीकेज की वजह से गैस प्रेशर मुतासर होता था। अब इन इलाकों में मरहलावार लाइन तब्दील की जा रही हैं ताकि गैस हर घर को मुयस्सर हो। हमारा एक तो नॉर्मल सिस्टम है कंप्लेंट का जो 24 घंटे ऑन होता है, और वो कोई भी उस पे 1199 पे कंप्लेन करता है और हम उसको फौरी तौर पर करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अब सर्दियों के लिए खास तौर पर हमने एक अपना कंट्रोल रूम बनाया, सिचुएशन रूम, जहां हमारे बंदे मौजूद होते हैं। वो कंप्लेंट वहाँ एक फ़ोन नंबर भी हमने दिया हुआ है, और उस पे जो लोग कंप्लेंट करते हैं उसको खास तौर पर हम फौरी तौर पर हल करते हैं और उन इलाकों में जाके हमारी टीमें विजिट करती हैं। हम अपने सर्वे भी करवा रहे हैं। हमारा जो देहाती इलाका है वहाँ हम 6 से 9 बजे और 12 से दोपहर 12 से 2 बजे तक और शाम को 5 से 8 बजे तक दे रहे हैं। शहरी इलाका में हम शाम की जो गैस है वो 6 से 9 बजे तक दे रहे हैं। दूसरी तरफ गैर कानूनी तौर पर घरों में कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के खिलाफ महकमा सुई नादरन गैस की टीमों की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नारंग मंडी में भी सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरियों को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसील से आगाह करते हैं कमर गुलाटी अपनी इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में अंजुमन शहर का महाना इजलास मियाँ अमजद अली की जेर सदारत उनके रिहायशगाह पर मुनक्कद हुआ, जहाँ सर्दी के लिहाज आते ही सुई गैस की लोड शेडिंग पर शदीद एहतजाज किया गया और हल्का के वफाकी वज़ीर मोहतरम राना तनवीर खान से मुतालबा किया गया कि सुई गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए
और सुई गैस की जारी करदा लोड शेडिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। बसूरत दीगर आवाम शदीद एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। इजलास में तमाम मेंबरान और सुप्रीम काउंसिल ने शिरकत की। इस मौका पर सुई गैस के कोऑर्डिनेटर शफीक भट्ट भी मौजूद थे। लोड शेडिंग हो रही है, लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, स्कूलों के बच्चे बगैर नाश्ते के जा रहे हैं और घरों में पर वक्त खाना भी मुहैया नहीं होता। अंजुमन शहरिया के हवाले से नारियल मंडी की आवाम की ये अपील है अरबाब इक़्तिदार से कि हमारे मसाइल हल किए जाएं, मगर ना हम भी एहतजाज करने पे मजबूर हो। मसला सुई गैस का पिछे भी असां एहतजाज का ऐलान तो नहीं किया, ये आखिया सी कि गैस की लोड शेडिंग जी खत्म कर दो, नहीं तो ये खिलाफ जो एहतजाज करांगे। तो उन्होंने मेहरबानी है, उन्होंने गैस लोड शेडिंग का घटाया सी तो हुण फिर वही हाल हो गया है। तो मेहरबानी करके ते ये जिहड़ा वे गैस का लोड शेडिंग सही कर दवो। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल भोंग के सामने जगह जगह गंदगी के ढेर। सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से तलबा को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं शाहिद बलोच की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल भोंग के सामने जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और स्कूल के सामने सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, जिससे तलबा समेत शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल भोंग शरीफ के सामने कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इसके अलावा सीवरेज का गंदा पानी भी यहाँ पे खड़ा होता है, जिसकी वजह से बच्चों को तकलीफ़ होती है आने जाने में और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारी DC रहीमियर खान से भी गुजारिश है कि यहाँ से स्कूल के सामने से कचरे के ढेर हटाए जाएं और सीवरेज के पानी को ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो मूज़ी बीमारियों से भी बच सकें और लोगों को जो आने जाने में दुश्वारी होती है उसके मुश्किलात भी हल हों। शहरियों का कहना है कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल भोंग के सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तलबा समेत हमें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ताफुन उठने लगी और हम मुख्तलिफ मूज़ी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद शहरियों का कहना है कि इस बारे मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह की है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद और दीगर आला अफसरान से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि कचरे के ढेर को हटाया। बन्नू में अम धरना कामयाब मुज़ाकरात के बाद खत्म। धरने के मुंतज़मीन के तमाम मुतालिबात मान लिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। फैसला किया गया कि वज़ीरिस्तान में शहीद 3 ताजरों के पसमानदगान को शुहदा पैकेजेस दिए जाएंगे और सूबाई वज़ीर मलक शाह मोहम्मद खान तीनों शुहदा के लाहिकीन को 3 नौकरियां भी देंगे। मुज़ाकरात में यह भी फैसला किया गया कि धरने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जाबहक होने वाले फर्द के घर वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और 3 ताजरों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि बन्नू के हाफिज अताउल्ला शाह बुखारी चौक में बन्नू की तमाम अक़वाम ने पिछले 10 रोज से अमन व अमान के खिपुर में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से मून स्टार हाई स्कूल में सिंध की सकाफती सिंध टोपी अजरक का दिन मनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने सिंधी खाके, टेबलोस और सिंधी गानों पर रक्स किया। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। खिपरो में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से मून स्टार हाई स्कूल में सिंधी सकाफती प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। सकाफती प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों और बच्चियों ने सिंध की सकाफत पर रोशनी डाली और सिंधी सकाफत पर खाके, टेबलोस पेश किए और सिंधी गानों पर रक्स किया। इस मौके पर स्कूल की ऑपरेटर जरीना परवीन, शाहजेब, वसीम बोजदार, आदिल शिराज और देगर ने बात करते हुए कहा, आज हमने ये जो सिंध सकाफत डे मनाया है, आज हमारे थोड़े से टाइम में हमारे टीचर्स ने और हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। आप सब ने देखा, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। आज मून स्टार हाई स्कूल में बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सब शागिर्दों ने जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लिया और इन सब का बहुत शुक्रिया जो स्कूल में मेहमान आए और इसके अलावा जो हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन्होंने बहुत जोश और जज्बे के साथ बच्चों को तैयारी करवाई। बहुत कम वक्त में हमने ये छोटा सा फंक्शन मुनक्किद किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर बच्चों का जोश और जज्बा देखकर, जो कि सिंध के सकाफत के हवाले से इन्होंने आज यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस दी और माशाल्लाह से बहुत जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर बच्चों ने जो है अपना परफॉर्म दिखाया और मुझे खुशी हुई यहाँ पर बच्चों में जोश जज्बा देखकर। ये हमारा आज जो ना
गढ़ी खैरों में पाकिस्तान मुहाफिज लोअर फोरम के मरकजी चेयरमैन राजा सरवर सुमरो की आमद, नए दफ्तर का इफ्तिताह और तंजीम की बॉडी तश्कील की। मजीद जानते हैं मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। गढ़ी खैर तहसील में मोहब वतन तंजीम पाकिस्तान मुहाफिज लोअर फोरम के चेयरमैन राजा सरवर सुमरो की आमद, जिसके साथ मरकजी सदर मोहम्मद अली सुमरो, मरकजी सीनियर नायब सदर निसार अहमद अबड़ो, मरकजी नायब सदर हसन करीम गोलो और डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद के नायब सदर अब्दुल मजीद केहर साहब ने खुसूसी शिरकत की। और जिला जैकाबाद की तहसील गढ़ी खैरों में पाकिस्तान मुहाफिज लोअर फोरम की यूनिट का इफ्तिताह किया। और गढ़ी खैरों के अहदेदारान सरपरस्त आला हाफिज शान मोहम्मद बेरोही, चेयरमैन इशफाक कादरी, तहसील वाइस चेयरमैन सनाउल्लाह उमरानी, तहसील सदर मोहम्मद सलीम दायो और तहसील जनरल सेक्रेटरी एहसान दायो की कोशिशों को सराहा और कहा कि हमारी तंजीम मोहब वतन पाकिस्तान है। हमारे तंजीम का मकसद अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करना है। हमारे मुल्क के जितने भी दिफाई इदारे हैं, हमारी फोर्सेस हैं, हमें उनसे प्यार है। सजावल शहर के मेन पब्लिक बाग की हालत खस्ता हाल, नशइयों ने डेरे जमा लिए। टाउन इंतजामिया की नाअहली के बाइस बेनजीर भुट्टो पार्क में लगे झूले टूट फूट का शिकार। स्ट्रीट लाइट्स भी खराब हो चुकी हैं। वक्त से पहले ही पार्क में दाखिला बंद कर दिया जाता है। रात होते ही नशई पार्क का रुख कर लेते हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रेनाला खुर्द बल्दिया हॉल में माँ और बच्चे की सेहत और ग़िज़ाइयत के हवाले से हफ्ता आगाही मुहिम के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में CEO हेल्थ डॉक्टर अख्तर मिहार बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंच, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मियाँ अफजल किमानिया और शाह समीना ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ ओकाड़ा का कहना था कि ज़िले भर में ग़िज़ाइयत का हफ्ता मनाया गया। न्यूट्रिशन वीक में ग़िज़ाई कमी के शिकार बच्चों की मुकम्मल स्क्रीनिंग और मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया। दस्त के शिकार 5 साल से छोटे बच्चों, हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन को हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के हवाले से आगाही दी गई। न्यूट्रिशन वीक की अहमियत और अफादियत का जिक्र करते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर एजाज शाह ने कहा कि मुनासिब और बर वक्त ग़िज़ा का इस्तेमाल बच्चे की सेहतमंद नशोनुमा के लिए लाजमी है। भवाना में एशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा, गरीब आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना शहर में महंगाई की दुआई। भवाना में एशिया खुरोनोश की कीमतें कम न हो सकी। सब्जियां, घी, दालें, चीनी, आटा, गोश्त और रोजमर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छूने लगी हैं। गरीब और दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। इस हवाले से मेरे साथ एक लड़की लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि आटा, दालें, चीनी, घी, सब्जियां और अशिया खुर्दनोश हम गरीब मजदूर की पहुंच से दूर हो गई हैं। अब तो सूखी रोटी भी मुयस्सर नहीं। जाएं तो जाएं कहाँ, खाएं तो खाएं क्या। 500 रुपये कमाने वाले मजदूर के घर का बजट रोजाना 2000 रुपये बनता है। फर्ज करें अगर 1 किलो आटा लें, इसकी कीमत 120 रुपये बनती है, तो 15,000 तनख्वाह पर 1 किलो आटा ले लें तो बाकी क्या बचेगा। लिहाजा हुकूमत ने गरीबों को मारने के सारे हरबे आजमा लिए हैं। अब सिर्फ जहर सस्ता कर दें ताकि हम खाकर मर जाएं। हमारा बार बार यही मुतालबा है कि हुकूमत वक्त गरीबों पर रहम करें। जी बिल्कुल, इस शाही लड़की का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं और दूसरे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। संजयपुर में सरसों की लहलहाती सरसब्ज शाखों ने सुनहरी बालियां पहन ली। सरसों के जर्द फूलों ने खेतों को दिलकश नज़ारों में तब्दील कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाम जमीर की इस रिपोर्ट में। सरसों के जर्द रंग के फूलों देही माहौल में खूबसूरती का बायस बनते हैं। संजयपुर में रवां सीजन सरसों की काश वसी रकबे पर की गई, जिससे हर सू बाहर आ गई। संजयपुर की जरखेज जमीनें मुख्तलिफ फसलों की काश के लिए मौजूद तरीन हैं। सरसों की फसल हम काश्त करते हैं और बहुत अच्छी फसल है, मुनाफा बख्श फसल है, कम खर्च में तैयार होती है और किसानों को भी चाहिए ये फसल काश्त करें, कम वक्त में काश्त होती है।
ऐसी ही एक मुनाफा बख्श फसल सरसों की है, जिसका शुमार तेलदार अजनास में होता है। रवां सीजन में तहसील भर में तकरीबन 5000 एकड़ पर सरसों की फसल काश्त की गई है। सरसों की फसल से आयल के साथ साथ जानवरों का चारा, खल और सर्दियों की सौगात साग हासिल किया जाता है। सरसों की फसल की फी एकड़ पैदावार 30 मन के करीब हासिल होती है, जबकि मार्केट में सरसों की कीमत फी मन SE फेस्ट सर्कल जमशेद जमान की टास्क फोर्स ने बिजली चोरों को आड़े हाथों ले लिया। डिवीजन कोर्ट अब्दुल मालिक मुजम्मिल की सरबराही में ट्यूब कनेक्शन के गिर्द घेरा तंग, 200 कनेक्शन चेक किए गए, मुतअद्दिद के खिलाफ कार्रवाई, मुकदमा दर्ज। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबशर अली जंजुआ से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। देखें, एक्शन जो है कोर्ट अब्दुल मालिक इनकी सरपरस्ती में तमाम SDO साहिबान ने मिलकर MNT के हमरा बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग किया था। हफ्ते और इतवार के रोज इन्होंने 2 दिन लगा के 200 से 300 कनेक्शन ट्यूबवेल जो थे इनकी डिवीजन में वो चेक किए गए। इन्होंने फैजपुर और उसके बाद ब्रुज अटारी के एरिया में जो इनकी सब डिवीजनें थी उनके इर्द गिर्द जो ट्यूबवेल कनेक्शन थे उनको चेक किया और उनके खिलाफ अंदराजे मुकदमात की दरखास्तें भी दी और कई लोगों को जाए वकुआ से इन्होंने हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले भी किया गया। जी बहुत शुक्रिया मुबशर, आपने आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर सिटी मोहम्मद मुर्तजा ने सब्जी और फ्रूट मंडी बादामी बाग का दौरा किया। प्याज, आलू, सब्ज मिर्च और लहसुन और दीगर सब्जी की कीमतों का जायजा लिया। तजावुजात का बाइस बनने पर 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सब्जी और फल फरोशों को रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर अवेजा करने की हिदायत की गई। सफाई सुथराई के इंतजामात का भी मुआयना किया गया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर बनाने की हिदायत की गई। रियल एस्टेट के इलेक्शन आते ही कैपिटल प्रॉपर्टी एडवाइजर के CEO साबर अनायत ने सरदार ताहिर महमूद की हिमायत का ऐलान कर दिया। इन्होंने फाउंडर ग्रुप के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुरू करता हूँ खुदावन यसुम मसीह के बाबरकत नाम से, जो मेरे नजात दहिंदा हैं बल्कि इस पूरी कायनात के नजात दहिंदा। मैं साबर जैगम CEO कैपिटल प्रॉपर्टी एडवाइजर ब्लू एरिया इस्लामाबाद अपने तमाम दोस्तों के साथ और आगा तनवीर भाई के साथ मिलकर हम सरदार ताहिर साहब के साथ इनके ग्रुप में फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप में शमूलियत का ऐलान करते हैं। शुक्रिया। सादकाबाद में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के ओहदेदारोों का चुनाव कर लिया गया। मुतफिका तौर पर नई जिले और तहसील लेवल पर बॉडी का ऐलान किया गया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। तालीमी मसाइल को उजागर करने और उनके हल के लिए प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन अरसा दराज से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, जिसके ज़रिए तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे के मसाइल को हल किया जाता है ताकि मुल्क का तालीमी निज़ाम बेहतर हो सके और हमारे तालीमी इदारे तरक्की कर सकें। गुज़श्ता रोज़ तहसील सादिकाबाद और ज़िला रहीमिया खान में यूनियन की नई बॉडी का ऐलान किया गया, जिसमें मेरिट की बुनियाद पर तमाम अहदेदारान को मुंतखब किया गया, जिसमें फजलुर रहमान अवान को ज़िला सदर के फ़राइज़ सौंपे गए। इस हवाले से ज़िला सदर फजलुर रहमान ने नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे जो है ना डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान के लिए जो है ना प्रेसिडेंट के लिए चुना और पिछले 2 साल में तकरीबन तहसील सादिकाबाद का चेयरमैन के तौर पे जो है ना वो काम कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना एग्जेक्टिव बॉडी ने तमाम लोगों ने साथ मिलके सादिकाबाद के प्राइवेट एसोसिएशन इदारों के लिए जो है ना अच्छा काम किया, ट्रेनिंग्स करवाई। कोरोना के हवाले से जो है ना वो ट्रेनिंग्स होती रहीं, SOPs के हवाले से हमने काम किया। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि मुझे जो है ना प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार के हिसाब से रहीमिया खान और तहसील सादिकाबाद में मज़ीद जो है ना हम अच्छा काम कर सकें और जो प्राइवेट शोबे को मसाइल हैं उसको हम बेहतर तरीके से हल करने में कामयाब हों। रहीमिया खान और सादिकाबाद के तमाम प्राइवेट इदारे जो हैं उनके मसाइल के हल के लिए ज़िले सदर और तमाम मेंबरान और ओहदेदारान जो हैं वो अपना अहम किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ
आगे बढ़े और आपको बताएं कि रनाला खुर्द मुस्लिम टाउन का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरी का कहना है कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो भी अरसा दराज से खराब पड़ा है। गंदा पानी पीने से पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खुद नोटिस लेकर प्लांट की मुरम्मत करवाएं। ओकाड़ा के नवाही गांव एल52 2 का कब्रिस्तान सीवरेज के गंदे पानी से भर गया। गंदे पानी की वजह से तदफीन के लिए आने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए बताया कि गंदे पानी के बाइस इलाके भर में ताफून और बदबू फैल रही है। कई बार दरखास्तें दे चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अहले इलाका ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डेरा इस्माइल खान DHQ अस्पताल की नर्सेज अपने ही हेड के खिलाफ सरापा एहतजाज। अस्पताल के सामने GPO चौक को ब्लॉक कर दिया। मामला क्या था, मज़ीद जानते हैं सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। DHQ डेरा इस्माइल खान की नर्सेज एक बार फिर अपने ही नर्सेज डायरेक्टर के खिलाफ सड़कों पर आ गई। GPO चौक बंद कर दी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नर्सेज का कहना है कि हम पिछले कई माह से नर्सेज डायरेक्टर इरशाद हुसैन के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं कि ये हमें हरासा करता है और इसका रवैया हमारे साथ दुरुस्त नहीं है, मगर मालूम नहीं कि किसकी सपोर्ट पर ये अभी तक हमारे ऊपर मुसल्लत है। मुख्तलिफ तरीकों से उन तक बात पहुंचा भी रहे हैं, एप्लीकेशनें भी दे रहे हैं BOG को कि हमारे साथ बैठ कर बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं। हमें कहा गया था कि मैम नाइला आएंगी और ये इस मसले का हल निकालेंगी। हम अली यमीन सर के पास भी गए थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस हमें दिया। उन्होंने इनसे कहा भी कि इस बंदे को हटा दो, जहाँ इतनी नर्सेज इफेक्ट हो रही हैं तो आप इस बंदे को निकाल दो, इसका मतलब इस बंदे में कोई ना कोई तो मसला है। लेकिन वो बंदा नहीं हटा क्योंकि हॉस्पिटल डायरेक्टर का कहना था कि मैम नाइला आएंगी और इस मसले का हल निकालेंगी। मैम नाइला आई हैं, उन्होंने कहा पिछली सारी बातें भूल जाएं और नए सिरे से शुरू करें। इस तरह नहीं हो सकता है क्योंकि वो बंदा अभी तक वही हालात बनाए हुए है, अभी तक लड़कियों को धमकियां दे रहा है, अभी तक यही मसाइल वो बना रहे हैं हमारे साथ। और अभी जब हम इधर रोड पे ठहरे हुए हैं, अभी भी उन्होंने वार्डों में एक बंदे को भेजा है जो मेल नर्स है, जुनैद नामी, उसको कहा है जाओ वार्डों में राउंड करो। कौन सी लड़की वार्ड में नहीं है ताकि मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकूं। नर्सेज ने कदबे उठा रखे थे और इरशाद हुसैन के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। सर्दियों की ठंडी रातें हो तो दोस्तों की महफिल में गरम मछली खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। इस हवाले से देखते हैं नौशहरा से माजिद खटक की ये रिपोर्ट। हुजरे की रिवायात तो अपनी जगह, मगर सर्द रातें हो और ठंड का एहसास होने लगे तो ऐसे में किसका दिल गर्मा गर्म मछली खाने को नहीं चाहता, और साथ हुजरे में बैठकर रबाब का तड़का न हो, ऐसे कैसे मुमकिन है। आप सबको पता है कि सर्दियों की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और आज चूंकि मौसम बहुत ज्यादा ही ठंडा था तो इसलिए हम दोस्तों ने आपस में मिलके एक गैदरिंग सी बनाई है, जो कि आप देख सकते हैं फिश जो है वो ग्रिल हो रहा है और इसका अब हम मजा लेंगे थोड़ी देर बाद जब ये रेडी होगा। और सुनते आए हैं, हमारी उम्र तो इतनी नहीं है, सुनते आए हैं बुजुर्गों से, बड़ों से कि पुराने जमाने में हुजरों में हम बैठते थे, गपशप लगाते थे, टाइम गुजारते थे, एक दूसरे के हाल अहवाल पूछते थे। तो हम भी वही चीज, वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हो और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ट्रू कि उसमें मजा है, सुकून है इसी में। तो मैं रिकमेंड भी करूंगा कि अपने दोस्तों कजनों के साथ मिलकर बैठा करे, टाइम दिया करे, प्रोग्राम करे, गैदरिंग करे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नारंग मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर, गली मोहल्लों में खड़े सीवरेज के गंदे पानी से डेंगू का खतरा बढ़ने लगा। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में हुकूमती हदायत के बावजूद इंतजामिया डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए कोई मुस्बत इकदाम नहीं कर रही, जबकि सूरत हाल ये है कि कई शहरी डेंगू के बायस लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। शहर के गुंजान इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी गलियों में दबा दबा है, नाले गंदे पानी से भरी हुई हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर डेंगू फैलाने का सबब नशे हैं। ये खौफनाक सूरत हाल है जिसका इंतजार बहुत ज़रूरी है। DC शिवपुरा और महकमा सेहत की टीमें डेंगू के इंतजारी के लिए मुस्बत इकदाम करें। वाज़ह है कि नारंग शहर में से गुजरने वाले राजपथ सोहेल में
پارا چنار میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع کرم میں سینکڑوں شہریوں کا احتجاج، ٹائر چلا کر مین جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندے جاوید منگش کی اس رپورٹ میں۔ پارا چنار سمیت ضلع کرم میں جاری ناروا لوڈ شیڈنگ کے خلاف گریس اسٹیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر مین روڈ کو بند کیا۔ پارا چنار سمیت دیہاتی علاقوں میں یومیہ 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ پاک یوتھ موومنٹ کی کال پر ہونے والے مظاہرے میں مختلف علاقوں کی بلدیاتی نمائندگان، تاجر برادری، فلاحی و مذہبی تنظیموں کی کارکنانوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے گریڈ اسٹیشن کے سامنے مینٹل پارا چنار جی ٹی روڈ پر ٹائر جلائے اور روڈ کو بند کیا۔ مظاہرین نے پارا چنار گریڈ اسٹیشن کے عملے اور ٹیسکو کے خلاف سخت نعرہ بازی کی۔ لیکن ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ، ابھی احتجاج بھی جاری ہے، کہ فوری طور پر اور اس حملے کو ٹرانسفر کیا جائے دوسرے اضلاع میں، تاکہ دوسرے لوگ آ جائے۔ پٹیاری میں سندھ میمن اتحاد کے مرکزی چیئرمین پی ٹی اے کے رہنما حاجی عبدالرزاق میمن کے جہلم کے موقع پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی فیضان کی اس رپورٹ میں۔ بٹیاری شہر سے تعلق رکھنے والے سندھ میمن اتحاد کے مرکزی چیئرمین مرحوم حاجی عبدالرزاق میمن کے چہلم کی تقریب کے موقع پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ کی تقریب میں محفل میلاد کی محفل میں ملک کے نامور نعت خوان سید سلمان شاہ جیلانی، احتشام افضل بمبرو سمیت مقامی نعت خوانوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے محفل میں 4 چاند لگا دیے۔ حاجی عبدالرزاق میمن نے 2013 والی جنرل الیکشن میں سابقہ سروری جماعت روحانی پیشوا مخدوم محمد امین فہیم کے مد مقابل 75,000 ووٹ حاصل کیے۔ کچھ سال قبل مرحوم نے ایس آئی ٹی ہاسپٹل قائم کرنے کے لیے 12 ایکڑ اراضی زیر زمین اور 17 کروڑ روپے کی رقم دی۔ سید پور سے 5 روز قبل لاپتہ ہونے والا نوجوان تاحال نہیں مل سکا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ورثہ کا کہنا ہے کیونکہ 17 سالہ بیٹے محمد صابر کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام الطاف حسین ہے۔ منگل والی دیوار 3 بجے میرا بھنیجا صابر حسین بکریاں چراتے گھر آئے، بکریاں چراون گئے، بکریاں دا واپس آ گئے تے صابر حسین واپس نہیں آیا۔ اساں ہکڑو ڈیاڑے گولے ساکو نہیں ملیا تے لہذا ساکو شک ہے بھی کوئی نامعلوم افراد کو اغوا نہ کر گدا انہیں سارے نال ڈی پی او، آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ سارے نال تعاون کرے، سارا بھنیجا بازیاب کروا دے۔ محمد وسیم ہے، میرا بھتریجے دا نام محمد صابر ہے، ساری قوم پڑھبی ہے تے منگل والے دن میرا بھتریجا محمد صابر بکریاں چران گیا ہے نال زمیندار کے زمین میں تے 3 بجے بکریاں تو واپس آ گئی ہیں، پر محمد صابر کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمیں نامعلوم افراد تے شک شبہ ہے کہ وہ اسے اغوا نہ کر گئے۔ تھانہ سید پور میں اپنا مقدمہ بھی درج کر دیتا ہے، لہذا ڈی پی او، آر پی او فوری طور نوٹس گنن۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔